Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5 by Brain Root series, and here's a book, Science Spark. Today we are going to start with Unit 5 and the name is Moving Things, People and Ideas, and the chapter over here is chapter number 13, Force, Work and Energy. So let's start the chapter. In this chapter, we are going to learn about force, types of forces, work, energy, what is a machine and simple machine. Let's start the chapter with warm-up exercise. Identify the following simple machines and write L for lever. Lever के लिए L लिखना है, पुली के लिए P लिखना है, व्हील एंड एक्सल के लिए WA लिखना है और इंक्लाइन प्लेन के लिए IP लिखना है. वेजेस के लिए W लिखना है और स्क्रू के लिए S लिखना है. So let's do this exercise yourself. You have to do it yourself. Now look at your surrounding. आपको अपने आस-पास की जगहों को देखना है. You will observe that some objects like car and buses are moving. आप देखोगे कि आपके आस-पास जो कार और बस है वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है. While some like trees, signboard, door and window are stationary. लेकिन ये जो कुछ चीजें हैं जैसे कि कोई पेड़ हो गया, कोई साइन बोर्ड हो गया, ये अपनी जगह पे ही रुके हुए हैं. The state of motion of a body is determined by the fact that it is moving or not. तो किसी भी जो बॉडी है उसके स्टेट ऑफ मोशन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? डिटरमाइन तब किया जाता है कि वो चीज मूव कर रही है या नहीं. A body is said to be in motion if it's moving and at rest if it is not moving. अगर कोई चीज चल रही है तो कहेंगे कि the object is moving. लेकिन अगर वो चीज नहीं चल रही है तो हम क्या कहेंगे? It is at rest. What is force? How will you do the following activities? तो यहाँ पे जो है कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, आपको बताना है कि एक्टिविटीज आप कैसे करेंगे. पहला है मूव अ चेयर फॉरवर्ड. चेयर को आगे की तरफ करना है आपको. मूव अ चेयर बैकवर्ड. चेयर को पीछे की तरफ खींचना है. मूव अ फुटबॉल फ्रॉम अ प्लेस इन द फील्ड इनटू द गोल पोस्ट. तो आप ये सब एक्टिविटीज करने के लिए क्या करोगे? चेयर को आपको फॉरवर्ड करना है तो आप उसे पुश करोगे आगे की तरफ. अगर उसे बैकवर्ड खींचना है तो आप अपनी तरफ पुल करोगे उसे. So these are the things you are going to do. You either push or pull objects to move them. हम क्या करते हैं? चीज़ों को या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं उसे मूव करने के लिए. This pull and push acting on an object is called force. ये जो push और pull हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं इसे ही तो हम force कहते हैं. Now here you have to do this activity. Bring a bat and ball and go to the school playing ground. आपको एक बैट बॉल लेना है, स्कूल के प्ले ग्राउंड में जाना है. And now ask your friend to throw the ball at you. आपको अपने फ्रेंड से बोलना है कि बॉल आपकी तरफ फेंके. Hit the ball with the bat every time. आपको क्या करना है? बॉल को हिट करते जाना है बैट से. As the ball is thrown to you. जैसे कि ये बॉल आपकी तरफ आती है. Now try to send the ball in different directions. अब आपको बॉल को अलग अलग डायरेक्शंस में लेके जाना है. Can you do this? क्या आप ये कर सकते हो? बॉल को अलग अलग डायरेक्शंस में क्या आप हिट कर सकते हैं? So write it here. Now children, force can change the direction of a moving object. किसी भी moving object के direction को change कर सकता है. Can change the shape of an object. किसी भी object का shape change कर सकता है. Can make an object move. किसी object को move कर सकता है. And also can stop moving an object. और किसी moving object को stop भी कर सकता है. तो force ये सारे काम कर सकता है. Now let's learn about the types of force. There are many types of forces. Let's know about few of them. तो चलिए कुछ forces के बारे में पढ़ते हैं. पहला आता है magnetic force. Magnets have special properties by which they possess a force. Magnets में special properties होती हैं जो क्या करती हैं? जो फोर्स को पॉजेस करती हैं. दैट कैन मूव सर्टेन ऑब्जेक्ट. जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है. एंड ऐसे फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. नाउ यू हैव टू टेक फ्यू आयरन नेल्स. आपको कुछ आयरन नेल्स लेने हैं. एंड ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द नेल. और आपको एक मैग्नेट लेना है और नेल्स के पास ले जाना है.
You will observe that the nails get attracted towards the magnet. आप इस बात को देख के हैरान हो जाएंगे कि ये जो मैग्नेट है वो इन सारे नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है. Now try to detach the nails from the magnet. अब आपको क्या करना है, नेल्स को मैग्नेट से दूर करने की कोशिश करनी है. You will feel that some force is trying to keep the nails fixed to the magnet. आप जब उन नेल्स को दूर करोगे मैग्नेट से तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज है जो नेल्स को उस मैग्नेट से दूर होने से रोक रही है, और यही तो है वो मैग्नेटिक फोर्स. नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. थिंग्स कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग देम. चीज़ों को अगर हम रब करेंगे तो वो चार्ज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कॉम्ब आवर ड्राई हेयर, अगर हमने सूखे बालों में कॉम्ब किया, द कॉम्ब गेट्स चार्ज. कॉम्ब क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है. एंड अट्रैक्ट्स टाइनी बिट्स ऑफ पेपर, और वो इजिली छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं पेपर के उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है. Thus, when things are rubbed with each other, जब चीज़ें एक दूसरे के साथ रब की जाती हैं, they become charged, वो चार्ज हो जाते हैं. And a force of attraction is produced, और ये जो force attraction का ये प्रोड्यूस होने लगता है. This force is called electrostatic force, और इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऑल्सो बी रिपल्सिव. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये रिपल्सिव हो सकता है, मीन्स चीज़ों को एक दूसरे से दूर भी कर सकता है. नेक्स्ट कम्स ग्रेविटेशनल फोर्स. सो द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये फोर्स क्या है, ये एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और इसे ही तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. इफ यू थ्रो अ बॉल, आप अगर मैंने ऊपर एक बॉल उछाली तो क्या होगा, इट फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, वो उसी तरीके से बाहर नीचे की तरफ आने लगेगा. एंड दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. और ये क्यों हो रहा है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से. अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज इफेक्टिव टू अ सर्टेन हाइट. ये जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक हाइट तक ही रहता है. इट डज नॉट वर्क इन स्पेस, ये वर्क नहीं करता है स्पेस में. सो ये यू कैन सी एस्ट्रोनॉट फ्लोट इन स्पेस एज देयर इज नो ग्रेविटी देयर. अब एस्ट्रोनॉट्स क्या कर रहे हैं, स्पेस में आराम से फ्लोट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे अर्थ की ग्रेविटी काम नहीं करती. नेक्स्ट कम्स फ्रिक्शनल फोर्स. इफ यू फील रियली कोल्ड, आपको अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, यू रब योर हैंड क्विकली टू वार्म अप बाय डूइंग दिस. आप क्या करते हो, अपने हाथों को जल्दी जल्दी रब करते हो ताकि आपके हैंड गर्म हो जाए, आपकी बॉडी को गर्माहट मिले. एंड यू एक्चुअली फील फ्रिक्शन, आप फ्रिक्शन फील करते हो. व्हेनेवर एनी टू ऑब्जेक्ट्स रब ईच अदर, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रब करते हैं, देयर इज अ फोर्स दैट प्रिवेंट्स देम टू ग्लाइड स्मूथली. यहाँ पे एक फोर्स होता है जो क्या करता है, इन्हें प्रिवेंट करता है एक दूसरे पे ग्लाइड करने में. दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन. इस फोर्स को फ्रिक्शन कहा जाता है. नाउ लेट अस लर्न सम यूजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्शन. सो चिल्ड्रन, चलिए कुछ यूजेस और प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं इन फ्रिक्शन का. Now let's learn about the uses of friction. In some cases friction is very important. कुछ चीज़ों में क्या होता है, फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा important होता है. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए, जैसे writing with a pencil or a pen it requires friction. अगर हम पेंसिल या पेन से लिख रहे हैं तो उसको क्या चाहिए, फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, तभी वो पेपर पे वर्क करेगा. You cannot hold a pencil in your hand without friction. हम बिना फ्रिक्शन के पेंसिल को अपने हैंड में होल्ड नहीं कर सकते. A pencil eraser uses friction to rub off mistake. पेंसिल इरेजर क्या करती है, मिस्टेक को इरेज करने के लिए फ्रिक्शन को यूज करती है. एंड rub off mistake written with a pencil lead. Now the tires of car would just keep spinning if there is no friction between the tires and the road. तो ये जो टायर होती है कार की, वो कैसे काम करती है, फ्रिक्शन की वजह से काम करती है. अगर फ्रिक्शन ना हो टायरों में तो क्या होगा, टायर जो लगातार चलती रहेगी. एंड ये जो फ्रिक्शन है टायर और उस रोड के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कार ब्रेक्स कैन बी अप्लाइड बिकॉज
ऑफ फ्रिक्शन। ये जो कार के ब्रेक है ये फ्रिक्शन की वजह से ही अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट, रबिंग हैंड टुगेदर प्रोड्यूसेस हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर हम हैंड्स को रब करते हैं तो इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और वो भी फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन हेल्प्स यू टू वॉक। फ्रिक्शन की वजह से ही आप चल पाते हो। एंड if there was no friction, अगर फ्रिक्शन ना होता then we would just slip if we try to walk। तो हम क्या हो जाते हैं, तुरंत स्लिप करने लग जाते हैं अगर हम चलने की कोशिश करते। When we apply force in the backward direction, जब हम फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगाते हैं, by our feet the force of friction act in the forward direction। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ एक्ट करता है and help us to walk forward, और हमें आगे चलने में हेल्प करता है। If you try walking on an oily or wet floor, अगर आप एक तेल वाले फर्श पे या फिर गीले फर्श पे चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आप स्लिप हो जाओगे या गिर जाओगे। So here you can see the picture which shows that friction allows us to ride. Now let's learn about some problems of friction. Despite the fact that friction is useful for us, it can cause problems too. भले ही फ्रिक्शंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जैसे फ्रिक्शन कैन कॉज डिफिकल्टी इन स्लाइडिंग अ हैवी बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, अगर हम हैवी बॉक्स को स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो स्लाइड नहीं होगा। और वॉकिंग थ्रू द स्नो, या फिर स्नो में जो है हमें जो वॉक करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना होगा। फ्रिक्शन कैन वियर आउट द मूविंग पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को खराब कर देता है, वियर आउट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल द मटीरियल दैट वी वियर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन आर द पेंसिल इरेजर। पेंसिल के जो इरेजर है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं फ्रिक्शन की वजह से। एंड द सोल्स ऑफ योर शूज, और आपके शूज के जो सोल हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही खराब होते हैं। नाउ चिल्ड्रन, डू यू नो दैट स्मूथ सर्फेसेस ऑफ अ लेस फ्रिक्शन वाइल रफ सर्फेसेस ऑफ अ मोर फ्रिक्शन। आपको पता है कि जो स्मूथ सर्फेस होता है जैसे कि आपका स्लाइड, वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको कम फ्रिक्शन मिलेगा, लेकिन जो रफ सरफेस है वहां पे आपको ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा जैसे कि रोड। नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज वर्क। In science, work is said to be done when a force applied on an object causes it to move in the direction of the force. So science में क्या होता है, वर्क को तभी कंप्लीट माना जाता है जब जो है फोर्स जो भी अप्लाई किया गया किसी ऑब्जेक्ट पे वो क्या करता है, फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मूव कर देता है, तभी हम कहेंगे कि काम हो चुका है। When you lift your school bag, the position of the school bag changes. जैसे आप अपना स्कूल बैग उठाते हैं, अपने कंधों पे रखते हैं, तो वो चेयर से वो पोजीशन कहाँ जाती है, आपके कंधों पे आती है, तो हम कहेंगे द वर्क इज डन। नाउ हियर यू कैन सी वर्क इज नॉट डन हियर, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव नहीं कर रहा, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा इसका मतलब वर्क इज डन। नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज एनर्जी। यू नीड एनर्जी टू लिफ्ट योर स्कूल बैग। स्कूल बैग उठाना है तो क्या चाहिए, आपको ताकत चाहिए, और उसे ही हम एनर्जी तो कहते हैं। So energy is the ability of a person or a thing to do work. Energy क्या है, ये एक ability है किसी भी person की किसी भी काम को करने की। Now children, let's learn about the forms of energy. अब energy भी कई तरीकों की होती है। There are many forms of energy. Some of them are here. First comes mechanical energy. So this mechanical energy is the energy of an object due to its motion. ये क्या है, एक एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी मोशन की वजह से या फिर पोजीशन की वजह से। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी ईदर काइनेटिक और पोटेंशियल। ये जो मैकेनिकल एनर्जी है या तो एक काइनेटिक एनर्जी हो सकती है या फिर पोटेंशियल हो सकती है। एनर्जी ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है मोशन की, इसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। एंड स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी भी स्टेशनरी मीन्स रुके ऑब्जेक्ट का, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो ऐसी एनर्जी जो चल रही है वो काइनेटिक हो जाती है, जो रुकी हुई है वो पोटेंशियल कहलाती है। लेट्स सी दिस विथ एन एग्जाम्पल। सो हियर लेट्स सी व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब आप देख सकते हो ये साइकिलिस्ट क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये साइकिल को मूव कर रहा है, अपनी उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है।
मूविंग बस, मूविंग साइकिल, रनिंग बॉय एक्सेट्रा हैव काइनेटिक एनर्जी, इन सब में आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. But when we talk about potential energy, the energy stored in a body due to its position is called potential energy. So कोई भी एनर्जी जो किसी चीज़ के अंदर स्टोर है उसकी पोजीशन की वजह से उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. जैसे वाटर इन द टैंक हैज़ पोटेंशियल एनर्जी. Now the water stored in a tank has potential energy. All moving objects possess kinetic energy. जितने भी मूविंग चीज़ें हैं उन सब में काइनेटिक एनर्जी होती है. This energy can be transferred to other objects. ये जो एनर्जी है ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स तक पहुंच सकती है. A stationary car has potential energy. अगर एक रुकी हुई कार है तो उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है. When it starts running, जब वो रन करने लगती है, it possesses kinetic energy. और जब वो कार चलने लगेगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. An object which moves faster has more kinetic energy. कोई चीज़ अगर बहुत तेजी से चल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाती है. Then an object which is moving slower means अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करें, एक तेज चलने वाली चीज़, एक उससे भी तेज चलने वाली चीज़, तो जो सबसे ज़्यादा चल रही है तेज उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. नेक्स्ट कम्स थर्मल एंड और हीट एनर्जी. अब थर्मल या फिर हीट एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी क्या होती है? ये होती है सम टोटल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का, मीन्स दोनों का ही मेल होती है ये थर्मल या फिर हीट एनर्जी. एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन अ थिंग इज हीटेड, जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं, इट एक्वायर्स थर्मल एनर्जी, उसमें क्या हो जाती है? थर्मल एनर्जी आ जाती है. इट मेक्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव और वाइब्रेट. ये क्या करता है? जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वो क्या करता है? उसे मूव या फिर वाइब्रेट करता है. इफ मोर हीट इज सप्लाइड, अगर ज़्यादा हीट दिया जाए, द मॉलिक्यूल्स एक्वायर मोर काइनेटिक एनर्जी. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर करते हैं एंड तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट शो हाउ मच थर्मल एनर्जी इट हैज़. सो ये जो टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो ये दिखाता है कि कितना थर्मल एनर्जी होता है उसके अंदर. नेक्स्ट कम्स केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी इज एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन टू केमिकल्स रिएक्ट. जब दो केमिकल्स रिएक्ट करते हैं तो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज जो कि शुगर है, जब भी ब्लड में रिलीज होता है केमिकल एनर्जी व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो केमिकल एनर्जी को रिलीज करता है. आवर बॉडी यूजेज दिस एनर्जी टू डू वर्क. हमारा जो बॉडी है वो इस एनर्जी को यूज करता है काम को करने के लिए. नेक्स्ट एनर्जी इज लाइट एनर्जी. लाइक हीट, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट की तरह लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है. दिस एनर्जी हेल्प्स अस सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. ये जो एनर्जी हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करता है. सन, बर्निंग कैंडल एंड ट्यूबलाइट्स आर सम सोर्स ऑफ एनर्जी. जो ये सन है या जो बर्निंग कैंडल है या फिर ट्यूबलाइट, ये कुछ लाइट एनर्जी का ही सोर्स है. नेक्स्ट यू कैन सी द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस. ये हमारे लिए बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का. Next comes electrical energy. Most of the appliances including bulb, fan, computer and television run on electricity and this is electric energy. Electric energy is associated with tiny units called atoms. ये जो electric energy है ये छोटे छोटे units से related है जिसे atoms कहा जाता है. This energy is created when particles called electron move from one atom to another. ये एनर्जी तब क्रिएट होती है जब पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स ये एक पार्ट से दूसरे एटम तक मूव करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन पावर स्टेशंस और ये इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशंस में जनरेट होती है. नाउ यू कैन सी टीवी एंड वॉशिंग मशीन वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट कम्स विंड एनर्जी. सो द एनर्जी दैट इज क्रिएटेड बाय द मूविंग विंड. विंड एनर्जी इज क्लीन एंड एंडलेस. ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन और एंडलेस होती है. एंड विंड मिल्स एंड विंड टर्बाइंस यूज ब्लेड्स टू कलेक्ट काइनेटिक एनर्जी. सो ये जो विंड मिल्स हैं ये क्या करते हैं? टर्बाइन ब्लेड्स को यूज़ करते हैं, टर्बाइंस को यूज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए इन विंड का. एंड दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी.
Next comes solar energy. Solar energy is the energy of sun, and solar energy is used to cook food in solar cooker, heat water in solar heaters, and this is also used in solar calculators and solar watches. So इन जगहों पे भी ये solar energy use की जाती है. Here you can see the example of solar cooker using solar energy. Next is, what is a machine? A machine is a device that helps to make our work easy. मशीन क्या है? एक ऐसी चीज है जो क्या करती है? हमारे काम को आसान कर देती है. And it does this by transferring a force from one place to another. और ये क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह. चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और ये जो डायरेक्शन है फोर्स का उसे भी चेंज करता है. इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स और इंक्रीजिंग द डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ फोर्स. ये क्या करता है? जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, इंक्रीज करता है, डिस्टेंस को इंक्रीज करता है एंड स्पीड को इंक्रीज करता है फोर्स का. नाउ व्हेन वी लुक अराउंड, जब हम अपने आसपास देखेंगे तो जो वॉशिंग मशीन है या कार है या मिक्सर ग्राइंडर है या फिर रेफ्रिजरेटर है, ये क्या है? ये कुछ मशीन्स हैं जो हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देते हैं, हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं. हाउएवर ऑल दीज मशीन्स आर कॉम्प्लेक्स मशीन्स. ये जितनी भी मशीन हैं ये कॉम्प्लेक्स मशीन के अंदर आती हैं. 2 or more simple machines can combine in such a way. 2 या उससे ज़्यादा मशीन्स को एक साथ जोड़ के क्या बनाया जा सकता है? एक कॉम्प्लेक्स मशीन बनाया जा सकता है जो एक ही काम करता है. Next, let's learn about simple machines. So simple machines are tools that make our work easy. ये हमारे काम को easy बनाते हैं और less time consuming बनाते हैं. A pair of scissors, scissor का pair, knife and nail cutter are example of some simple machines. ये example है कुछ simple machines के. Simple machines are of different types. ये अलग अलग तरीके के होते हैं. पहला आता है lever, फिर आता है wheel, फिर आता है axle, pulley, inclined plane, screw and wedges. All modern machines, no matter how complicated, जितने भी modern machines हैं चाहे वो कितने भी complicated हैं, they are combination of these simple machines. ये इस simple machine का combination है. Many of the simple machines closely resemble the inclined plane or a lever. ये जो बहुत सारे जो simple machines हैं ये क्या करते हैं? inclined plane की तरह ही होते हैं या फिर लिवर की तरह होते हैं. तो आप देख सकते हो दिस इज अ लिवर, जहाँ पे क्या स्टिक को लगा के एक स्मॉल स्टोन को नीचे रख के बड़े स्टोन को उठाया जा रहा है. ये है एक इंक्लाइन प्लेन जिसमें एक प्लेन को नीचे की तरफ किया गया और चीज़ों को उस पर रोल करके ले जा रहे हैं. दिस इज अ स्क्रू, दिस इज अ पुले जिससे वाटर को निकाला जा रहा है वेल से. व्हील एंड एक्सल यहाँ पे यूज हो रहा है. दिस इज व्हील एंड एक्सल एंड दिस इज अ वेज. So let's learn what is a lever. So a lever consists of a stiff rod. इसमें एक stiff rod रहती है या फिर एक बार रहता है जिसे अरेंज किया जाता है इस तरीके से कि ये जो है मूव कर सकता है easily around a falcum, falcum के आसपास. Lever is used to lift और move weight. ये lever जो यूज किया जाता है चीज़ों को उठाने के लिए, मूव करने के लिए with the least amount of effort. मीन्स कम से कम एफर्ट लगा के. ऑल लेवर्स हैव 3 बेसिक पार्ट्स. जितने भी लेवर्स हैं उनमें 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं. पहला आता है फैल्क्रम. ये क्या होता है? ये एक फिक्स पॉइंट होता है विथ द रॉड मूव्स, जो क्या करता है? रॉड को मूव करता है. फिर आता है लोड और वर्क. इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज टू बी डन. ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पे काम होता है. नेक्स्ट कम्स एफर्ट. इट इज अ फोर्स दैट इज नीडेड टू डू वर्क. ये एक ऐसा फोर्स है जो जरूरी होता है काम को करने के लिए. Levers are classified into 3 types. इन्हें 3 तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं based on the position of the falcum. falcum के पोजीशन पे अगर देखा जाए तो लोड पे देखा जाए और एफर्ट पे देखा जाए. तो फर्स्ट कम्स फर्स्ट क्लास lever. So when the falcum lies in between the load, जब ये जो falcum है बीच में होता है लोड के and the effort और एफर्ट के, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्लास लेवर. इसे हम फर्स्ट क्लास लेवर कहते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर सीसॉ. आप देख सकते हो यहाँ पे फैल्कम कहाँ है? बीच में. एक तरफ जो एफर्ट है और दूसरी तरफ लोड है. सिजर हो गए, प्लायर हो गया या फिर बीम बैलेंस.
A spoon when used to open a lid becomes a first class lever. स्पून को जब हम यूज करते हैं किसी भी लिड को ओपन करने के लिए तो उसे फिर फर्स्ट क्लास लीवर कहा जाता है. Next comes second class lever when the load of work is in the between the fulcrum. जब जो लोड और एफर्ट, लोड जो है एफर्ट और फैल्कम के बीच में हो, एंड इट इज कॉल्ड सेकेंड क्लास लीवर. इसे सेकेंड क्लास लीवर कहते हैं. नट क्रैकर, व्हील बैरो, बॉटल ओपनर आर सम सेकेंड क्लास लीवर. नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड क्लास लीवर when the effort is in between the load and the fulcrum. जब एफर्ट जो है लोड और फैल्कम के बीच में आ जाता है, इट इज कॉल्ड द थर्ड क्लास लीवर. इसे जो थर्ड क्लास लीवर कहते हैं. एंड सम एग्जांपल्स आर आई स्टोंग, एफर्ट, लोड एंड फैल्कम, फिशिंग रॉड, स्टेपलर एंड फोर्सेप्स. नेक्स्ट कम्स inclined planes. So a simple machine that has sloping surface is called inclined plane. एक simple machine जिसमें एक sloping surface होता है उसे inclined plane कहते हैं. एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे एक स्लोपिंग वुडन प्लैंक, रैम्प या फिर स्लाइड्स. ये यू कैन सी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. नेक्स्ट कम्स पुली. सो अ पुली कंसिस्ट ऑफ व्हील विथ अ ग्रूव्ड रिंग. ये क्या होता है, इसमें एक व्हील होता है और इसमें ग्रूव्ड रिंग्स होते हैं, रिम होते हैं विथ अ रोप, चेन और अ बेल्ट रनिंग अराउंड. इसमें एक रोप होता है या फिर चेन होता है और एक बेल्ट होता है जो इस पुली से दोनों तरफ जा रहा होता है. एंड द व्हील रोटेट्स आफ्टर द अराउंड द स्टेशनरी एक्सल. और ये जो व्हील है वो रोटेट करता है इस एक्सल के बीच में. अ पुली मेक्स इट ईजियर टू लिफ्ट अ बकेट. ये पुली क्या करता है, बकेट को ईजिली लिफ्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम द वेल. तो अगर हम इसे पुल करेंगे तो क्या होगा, ईजिली बकेट जो है बाहर आ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस व्हील. अ स्मॉल पुली एट द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोल हेल्प्स इन रेजिंग द फ्लैग. अब फ्लैग पोल पे आप देखोगे यहाँ पे भी एक छोटा सा पुली होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है फ्लैग को ऊपर ले जाने में, रेस करने में. यूजुअली मशीन्स यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड मूवेबल पुली. ज़्यादातर क्या होता है जो मशीन्स हैं वो यूज़ करते हैं फिक्स, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं फिक्स और मूवेबल पुलीज का. नेक्स्ट कम्स स्क्रू. ऑब्जर्व अ स्क्रू दैट अ कारपेंटर यूजेस. हमें क्या करना है, एक स्क्रू को देखना है जो कारपेंटर यूज करता है. इट हैज अ हेड एंड ग्रूव्स. इसमें क्या मिलेगा आपको, हेड मिलेगा और ग्रूव्स मिलेंगे. ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको इन्हें ग्रूव्स कहते हैं. कट अलॉन्ग इट्स लेंथ द ग्रूव्स आर नॉट सेपरेटेड. ये जो ग्रूव्स हैं अलग अलग नहीं होते हैं. दे आर इन फैक्ट लाइक अ लॉन्ग थ्रेड. ये एक लॉन्ग थ्रेड फॉर्म में होते हैं. एंड इट्स ईजियर टू ड्राइव अ स्क्रू इनटू अ प्लैंक ऑफ वुड विद द हेल्प ऑफ दिस. इसकी हेल्प से जो है वो स्क्रू जो है इजिली लकड़ी में चला जाता है. ऑल्सो दे हेल्प टू ग्रिप द सरफेस बेटर. ये सरफेस को अच्छे से ग्रिप करने में हेल्प करते हैं. सो द जॉइंट इज मच स्ट्रॉन्गर. ताकि ये जो जॉइंट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए. अ स्क्रू जैक ऑल्सो हैज़ अ बिग स्क्रू. ये जो स्क्रू जैक होता है इसमें आप देखेंगे बड़ा सा एक स्क्रू होता है. एंड इट इज़ यूज टू लिफ्ट अ कार फॉर रिपेयरिंग इन अ सर्विस सेंटर. इसे यूज़ किया जाता है कार को ऊपर लिफ्ट करने के लिए जब उसकी सर्विस हो रही होती है. नेक्स्ट कम्स व्हील एंड एक्सल. यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू. आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी which makes use of wheel. जो क्या करता है, व्हील का यूज करते हैं. Can you name them? Here you can see wheel and axle is used in this car. Now axle and wheel is used in screwdriver and sewing machine. Here you can see wheel and axle that is being used. So children, can you imagine that it would be like if the wheels were not invented? तो आप ये सोच सकते हैं क्या कि अगर व्हील इन्वेंट ही ना हुआ होता तो हमारा काम क्या इजी होता या नहीं होता. There would be no cars. अगर व्हील ही नहीं होते तो कार नहीं होते, बस नहीं होते, दूसरे व्हीकल्स नहीं होते या दूसरी वंडरफुल मशीन्स नहीं होती हमारे आसपास. The wheel itself is not machine. व्हील खुद में ही एक मशीन नहीं है. But it becomes one when you combine it with an axle. लेकिन अगर आपने उसको एक्सल के साथ ज्वाइन कर दिया तो वो एक मशीन बन जाता है.
द एक्सल इज ओनली अ सेकेंड स्मॉलर व्हील, ये क्या है, एक छोटा सा स्मॉल व्हील है. फिक्स टाइटली टू द फर्स्ट, ये पहले व्हील में टाइटली फिक्स किया जाता है. सो दैट दे टर्न टुगेदर, ताकि ये एक साथ टर्न हो पाए. स्क्रू ड्राइवर, कार स्टीयरिंग एंड टैप आर एग्जाम्पल ऑफ व्हील और एक्सल. सो ये सब चीज़ें क्या हैं, व्हील और एक्सल के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट कम्स वेज. A wedge is a modified or an inclined plane. Wedge क्या है, ये modification है एक inclined plane का. Wedges are used as either separating or holding devices. Wedges क्या है, किसी चीज़ को separate करने के लिए या hold करने के लिए यूज़ किया जाता है. A wedge can be composed of one or two inclined planes. इसमें एक या दो inclined planes हो सकते हैं. Placed together in the shape of a V. V के shape में होते हैं. A double wedge can be though of as a two inclined plane joined together with their sloping surface outward. ये जो double wedge है, इसमें आपको दो inclined plane मिलेंगे जो एक साथ join किए होते हैं और इनमें एक sloping surface होता है बाहर की तरफ. Common examples of wedges are, कुछ examples यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि chisel हो गया, here you can see, एक्सेस हो गए, नाइफ हो गया, ब्लेड हो गया. ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं वेजेस के. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. हियर अगेंस्ट द फॉलोइंग राइट L if it is a lever, I if it is inclined plane, and W if it is wheel and axle. So do it yourself. Now children, let's move on to flashback. Force is defined as a pull or push which changes or tries to change the state of motion of a body when acting on it. A force can make a stationary object move or a moving object move faster. A force can make a moving object slow down or stop. It can change the direction of a moving object. It can change the shape of an object. Gravity, magnetism, electrostat force, friction are some examples of forces. Friction is useful, but it also has certain disadvantages. Work is only said to be done when the force applied on an object causes it to move. Heat energy, light energy, mechanical energy, electrical energy, wind energy and sound energy are some examples of energy. There are 6 types of simple machines. These are lever, wheel and axle, pulley, inclined plane, screw and wedge. Now let's move on to new words. Here the first word is force, which is a push or pull. Work is when force produces movement in an object, work is said to be done. Energy is ability to do work. Potential energy is energy stored in a body due to its position. Solar energy is energy from the sun. Now children, let's move on to book exercise, and A exercises, check the correct option. So children, here the first question is, the force that helps us to walk without slipping is it. So ऐसा कौन सा force है जो हमें help करता है चलने में? So it is frictional force. Next, which among the following is a second class lever? कौन है इसमें से second class lever? So it is wheelbarrow. So rest of the questions are your homework children. Do it yourself. Now children, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is Earth's gravity keeps us and other objects on the ground. Friction makes it easy to slide heavier objects across the floor. Rest of the questions are your homework. Do it yourself. Now let's move on to C part, which is match the following. Here you have to match the two columns, column A and column B. So in the column A, it's written class 2 lever is a nutcracker and wheel and axle is a example of car steering. So steering is an example of wheel and axle. So do the rest as your homework. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. Here you have to define the following terms. In the first question, the first one is force. Force is pull or push of an object is called force.
And second one is energy. Energy is ability to do a particular kind of work. Work, whenever an object changes its position, it's said that work is done. So the rest of the questions, question number 2, 3, 4 are your homework, children. Do it yourself. And with this, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.